उनको केवल सच बोलने के लिए इनाम के रूप में प्रताड़ित करने के लिए डीएमके की सरकार ने फाइल किया था. Madras High Court has quashed an FIR which was filed with a vendetta mindset only and only to punish and penalize our leader, IT cell Pramukh and Saprabhari of Bengal, Shri Amit Malviya ji, for only speaking out the truth. 2023 में 2023 Udayanidhi Stalin, Mr. Stalin's son, Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, had attended a conference in Tamil Nadu where he had called upon not resistance or only trying to fight against Sanatan, but for the complete eradication and abolition of Sanatan. And this conference was organized where Udayanidhi Stalin made these comments, compared Hindu religion and Sanatan to dengue, to malaria, and it was in a sense a call, a chilling call of genocide against Hindus. 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने सीधे सीधे जाकर सनातन के समाप्ति की बात की थी, संपूर्ण हिंदू धर्म के मानने वालों के नष्ट की बात की थी, जेनोसाइड की बात की थी. And when this matter was raised by Amit Malviya ji, he has posted a tweet about this comment by Udayanidhi Stalin. Rather than act against Udayanidhi Stalin, the entire DMK government machinery, police and other agencies were left to treat vindictively Amit Malviya ji. उदयनिधि स्टालिन के इस जहरीले बयान पे कार्रवाई नहीं हुई. कार्रवाई उन पे हुई जिन्होंने हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते इस विषय को उठाया. और इसीलिए कल जो निर्णय आया है मद्रास हाई कोर्ट का, मैं आपको कोट करके भी बताऊंगा कुछ पैराग्राफ्स. एसेंशियली मद्रास हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वॉश कर दिया है और क्वॉश करते समय कहा है कि डीएमके की सरकार, उदयनिधि स्टालिन, ये हिंदू विरोधी है, इनकी पूरी लेगेसी हिंदू विरोधी है, उनके स्टेटमेंट हेट स्पीच में आते हैं और अमित मालविया जी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है. सो नॉट ओनली हैव दे क्वॉश्ड द एफआईआर yesterday, they have also come to conclusion, the High Court, that this statement is coming from a legacy of anti-Hindu and anti-constitutional DNA of DMK. मैं आपको कुछ पैराग्राफ्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं. पैरा 22 में हाई कोर्ट लिखता है, हाई कोर्ट, Madras High Court, Madurai bench. There are records to show specific incidents of attack by DMK on Hinduism, like cutting tuft hair, Janu, putting Janu on pigs. Several complaints have been made, but none have been acted upon. It is evident that there is a clear attack on Hinduism by DMK. DMK as a party Hinduism पर हमला करती है, यह पैरा 22 में लिखा है. Para 23, by overall consideration speech of the minister, it indicates clearly that it is totally against 80% of Hindus, and this comes within the mischief of hate speech. The minister, Mr. Udayanidhi Stalin, hails from the legacy, above legacy, anti-Hindu legacy. 153, 153A, 505, 504, IPC should not be on Amit Malviya, but it should be on the minister's speech. पैरा 23 में कोर्ट कहता है कि जो स्पीच दी है उदयनिधि स्टालिन ने, यह 80% हिंदुओं को सर्वनाश करने की, जेनोसाइड करने का स्पीच है और यह हिंदू उसके खिलाफ है और यह हेट स्पीच में आता है. अमित मालविया जी का ट्वीट जो सच बताया वो नहीं आता. और उदयनिधि स्टालिन उस लेगेसी से आते हैं जहां पर हिंदू को दो गाली तो मिलेगी वोट बैंक की ताली. पैरा 24, court with pain records the prevailing situation that a person initiating the hate speech, matlab Udayanidhi Stalin, is set free, and person reacting to the hate speech, Amit Malviya, faces the wrath of law. No case has been filed against the minister for hate speech in the state.
मतलब जिन्होंने हेट स्पीच दिया उनको तो छोड़ दिया गया, और जिन्होंने बताया ये हेट स्पीच है उनके ऊपर पूरी सरकार टूट पड़ी। पैरा 26, counter filed by Tamil Nadu police in the present case has political color, and this has been filed by the IO. Officials should be apolitical, but they are taking sides with political party, which is reprimandable. Para 26 में लिखा गया है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु की पुलिस ने पक्षपात करते हुए, जिसने हेट स्पीच किया उसको छोड़ दिया, और जो हेट स्पीच बता रहा है कि हेट स्पीच है उनके खिलाफ पॉलिटिकल कलर से कार्रवाई करते हैं, और यह कोर्ट कहता है रेप्रिमांडेबल है। एंड पैरा 27 फाइनल पैराग्राफ, कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन that continuation of the present case against petitioner Amit Malviya is an abuse of process of law. The court is inclined to quash the FIR quashed. मतलब कि अगर यह केस जारी रहता है तो अमित मालविया की प्रताड़ना स्टेट एजेंसीज के द्वारा की जाएगी। यह ऐसा होगा जो संविधान विरोधी होगा, जो लॉ विरोधी होगा, इसलिए केस को क्वॉश किया जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि डीएमके एंटी हिंदू तो है ही, डीएमके एंटी संविधान भी है। ये जुबान पर संविधान पर फैलाते हैं नफरत ये भाईजान, और करते हैं हिंदू का अपमान। यही बन चुकी है डीएमके की पहचान। और ये कोई एकलौता ऐसा बयान है, मैं सुबह से देख रहा था, आई वाज वाचिंग सिंस मॉर्निंग। डीएमके लीडर्स आर सेइंग दैट इट इज अ मिसइंटरप्रिटेशन, वी आर मिसइंटरप्रेटिंग, मीडिया इज मिसइंटरप्रेटिंग, इवन सुप्रीम कोर्ट इज मिसइंटरप्रेटिंग। DMK leaders should know that on 4th of March 2024, the Honorable Supreme Court has slammed Udayanidhi Stalin for the same comment. And I quote, Supreme Court says, you have abused your rights under Article 19(1)(a). You are not a layman, you are a minister. You should know the consequences of your speech. उधर भी hate speech कहा गया था उदयनिधि स्टालिन के बयान को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसी स्पीच पर। सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन नहीं करना आ रहा है, हाई कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा है, हिंदुओं को इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा है, केवल डीएमके को इंटरप्रिटेशन करना आ रहा है। और डीएमके का तो चरित्र बन चुका है, इट हैज बिकम द डीएनए ऑफ डीएमके। जस्ट फ्यू डेज अगो इसी मंच से हमारे तमिलनाडु के प्रभारी श्री पीयूष गोयल जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया था, और वो भी कोर्ट के आदेश के आधार पे था। उस समय पर भी मद्रास हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह जजमेंट दिया था कि जो सिंगल जज का जजमेंट था दीपम केस में, कि हिंदुओं को कार्तिकाई दीपम लगाने का अधिकार है मदुराई में, वो फैसला सही है। और उस समय पर भी डीएमके ने क्या किया था? उस समय पर भी डीएमके ने इंपीचमेंट वाला फतवा जारी किया था उस जज के खिलाफ। At that time also, the DMK, riled with its anti-Hindu, anti-Lord Murugan, anti-Samvidhan nature, had taken out a fatwa of impeachment against a single judge who had given the Hindus their constitutional right to light a deepam at the Deepathu. So this is not Sahyog. It is socha samjha vote bank ka udyog to give गाली टू हिंदूज, टू अब्यूज हिंदूज, टू थ्रेटन हिंदूज।